Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 28 of Business Mathematics, MTH367. So, we recalled in the last lecture that we studied section 7.17.2 optimization additional applications and we finished chapter 17. So last lecture में हमने section 17.2 को finish किया और उसमें हमने optimization के additional applications को पढ़े. So today we will start chapter number 18, which is integral calculus and introduction. Chapter objectives: introduce the nature and methods of integral calculus, present selected rule of integrations and illustrate their use, illustrate other methods of integration which may be appropriate when basic rules are not. तो इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें यह है कि हमने नेचर इंट्रोड्यूस करानी है इंटीग्रल कैलकुलस की क्या होती है और उसके बाद हमने रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को स्टडी करना है मुख्तलिफ किस्म के. सो टुडेस टॉपिक्स वी स्टार्ट विद एंटी डेरिवेटिव्स, rules of integration, additional rules of integration, and at the end we will study about the differential equations. In this chapter we will introduce a second major area of study within the calculus, which is integral calculus. An important concern of integral calculus is the determination of areas which occur between curves and other defined boundaries. Also, if the derivative of an unknown function is known, integral calculus may provide a way of determining the original function. तो यहाँ इस चैप्टर में हम आज मेजर एरिया जो है इंटीग्रल कैलकुलस का मेजर एरिया है डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे पहले हमने पढ़ा और अब हम इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है इंटीग्रल कैलकुलस की वो है एरिया को फाइंड करना, मुख्तलिफ कर्व्स और बाउंड्रीज के अंदर जो एरिया उसको फाइंड करना. और इसके अलावा अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हमें पता हो और हम बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसको फाइंड करना भी इंटीग्रल कैलकुलस से ही हो सकता है. एंटी डेरिवेटिव्स. द एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट. Given a function f, we are acquainted with how to find the derivative f prime. अगर हमें एक फंक्शन गिवन हो तो हमें पता है कि उसका डेरिवेटिव f प्राइम किस तरह से फाइंड किया जाता है. There may be occasions in which we are given the function f prime and wish to determine the original function f. तो ये भी हो सकता है कि हमें डेरिवेटिव f प्राइम गिवन हो और हमने ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना हो. Since the process of finding the original function is the reverse of differentiation, f is said to be antiderivative of f. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करते हैं, यानी किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करते हैं, तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव ऑफ f कहते हैं. सो कंसिडर द एग्जांपल. सो वी आर गिवन द डेरिवेटिव f prime of x is equal to 4. अब हमें गिवन है कि f prime of x जो है वो 4 के बराबर है and we call it equation star. So by using a trial and error approach, it is not very difficult to conclude that the function f of x is 4x. तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें तो हमें पता है कि ये जो डेरिवेटिव है 4x का डेरिवेटिव है. But there is another function having the same antiderivative. For example, if I take f of x is equal to 4x plus 1. अब अगर मैं f of x को 4x plus 1 भी लेता हूँ तो we know that f prime of x will be 4 into 1 plus 0 is equal to 4. तो इसका भी जो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. So basically, in fact, any function having the form f of x is equal to 4x plus c is antiderivative of f prime of x is equal to 4. तो अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन है 4x plus c तो f prime of x is equal to 4 का एंटी डेरिवेटिव होगा, या अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इस टाइप की किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 4 होगा, चाहे यहाँ पे c0 हो, चाहे c1 हो, या c कुछ भी हो, या c is any constant. किसी भी कांस्टेंट c के लिए इसका डेरिवेटिव होगा वो 4 होगा और जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हमारा 4x plus c होगा. So the next is to find the example of
एफ प्राइम ऑफ एक्स गिवन, और हमने इस एग्जांपल में इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 2x माइनस 5 है। सो इन द सॉल्यूशन यूजिंग अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच एंड वर्किंग विद ईच टर्म सेपरेटली, वी शुड कंक्लूड दैट द एंटी डेरिवेटिव इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। तो यहाँ भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। यहाँ हम देख सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स है 2x माइनस 5 इंटू 1 प्लस 0 जो कि है 2x माइनस 5। एग्जाम्पल। सो अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें जो पिछले एग्जाम्पल में उसमें एक पॉइंट गिवन है, तो हम c को फाइंड कर सकते हैं अंडर सर्टन कंडीशन। अगर हमें कोई कंडीशन गिवन हो तो हम जो c की वैल्यू है उसको फाइंड भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, assume in the last example that one point on the function f is 2 over 10, यानी f of 2 जो है वो 10 है। Determine the specific function from which f prime was derived। तो हमने वो फंक्शन फाइंड करना है जिससे हमने f prime को निकाला है। तो the antiderivative describing the family of possible functions was f of x is equal to x square minus 5x plus c। So now if you put f of 2, ये होगा आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस सी, और एफ ऑफ 2 क्या है 10 है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट सी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 प्लस 10। तो सी आपके पास जो है वो आ जाएगा 16। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 16. So you have found basically the specific all function rather than just constant c। तो आपने वो exact function find कर लिया है। आपके पास एक condition given थी तो जिसकी मदद से कि जिसका डेरिवेटिव आपको given था, तो ये जो है वो specific anti derivative है आपके पास। So revenue and cost functions। तो अब हम इसकी एक application देखते हैं revenue और cost function में। So if we have an expression for either marginal revenue or marginal cost, the respective antiderivative will be the total revenue and total cost function। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट का कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट देगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट note। So first is the example of marginal cost। So the function describing the marginal cost of producing a product is given by MC is equal to x plus 100, where x equals the number of units produced. It is also known that total cost equals 40,000 when x is 100. So determine the total cost function। तो marginal cost का आपके पास एक function given है जो कि MC is equal to x plus 100 है। x जो है वो नंबर ऑफ जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैं, और हमें ये भी पता है कि अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो जो कॉस्ट होगी वो $40,000 होगी। तो हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन को फाइंड करना है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। सॉल्यूशन। टू डिटरमिन द टोटल कॉस्ट फंक्शन वी मस्ट फर्स्ट फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपके पास क्या हो, कॉस्ट फंक्शन है, जैसे कि हमने कहा टोटल कॉस्ट फंक्शन होगा। और अगर हम हिट एंड ट्रायल एरर मेथड यूज़ करें तो इसका जो आपके पास एंटी डेरिवेटिव होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 100x प्लस सी। यानी अगर इसका आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका गिवन फंक्शन x प्लस 100। तो ये आपके पास जो है जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका एंटी डेरिवेटिव आपके पास कॉस्ट आता है। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ MC इज C। मार्जिनल कॉस्ट का जो एंटी डेरिवेटिव है वो C है। तो ये हमें गिवन है कि C ऑफ 100 जो है वो 40,000 है। तो हम इसको यूज़ करते हुए C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करें, दिस इज़ 40,000 इज गिवन एज C ऑफ 100, और हम x की जगह पे 100 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
प्लस 100 इंटू 100 प्लस सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 25,000। हेंस आपका जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 100x प्लस 2500 is total cost function. This is your total cost function. So this is an application of antiderivative to marginal revenue and marginal cost. So in fact it was only first example which we did for marginal cost. अब हम example करेंगे marginal revenue के लिए. So the marginal revenue function for a company's product is MR is given by 50,000 minus X, where X equals the number of units produced and sold. If total revenue equals 0 when no units are sold, determine the total revenue function for the product. अब marginal revenue का function given है और X जो इसके अंदर है ये number of units जो produce और sell होते हैं वो उसके बराबर है। तो हमने total revenue function find करना है और हमें ये भी पता है कि जब कोई भी आइटम सेल नहीं होगा तो जो टोटल रेवेन्यू होगा वो 0 होगा। सो व्हेन यू टेक द एंटी डेरिवेटिव, सो सॉल्यूशन, सो द एंटी डेरिवेटिव of marginal revenue which is 50,000 minus X is R of X which is 50,000 times X minus X square by 2 plus C। हमें गिवन है कि कोई भी आइटम सेल नहीं होता यानी X 0 होता है तो ये 0 के बराबर होता है। तो when we take this thing equal to 0 minus 0 divided by 2 plus C, तो इसका मतलब है हमारा जो C है ये भी 0 है। हमारा जो कांस्टेंट C है वो 0 है। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो है वो हमारा होगा द टोटल रेवेन्यू फंक्शन would be R of X is equal to 50,000 times X minus X square by 2 क्योंकि C 0 है। So this is the your required total revenue function. So now we move towards the rules of integration, and first basically we will describe what is the integration. यानी integration क्या होती है। So the process of finding antiderivatives is more frequently called integration. जो antiderivative find करने का process है उसको हम integration कहते हैं। So the family of functions obtained through this process is called the indefinite integral. तो इस प्रोसेस से हमारे पास जो फैमिली ऑफ फंक्शंस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल। फैमिली ऑफ फंक्शन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सी आता है जैसे कि इस कॉस्ट फंक्शन में आ रहा है तो हम इसकी हर एक सी की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है। सो बेसिकली वी हैव द फैमिली ऑफ फंक्शंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बेसिकली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी। अगर आपकी सी की एक वैल्यू होगी तो एक फंक्शन आएगा, कोई और होगी तो दूसरा आएगा। इसी तरह इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी हैं कांस्टेंट की, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे, तो इसको हम फैमिली कहते हैं। और ये जो आपके पास आता है इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। सो द नोटेशन integral f of x dx is often used to indicate the indefinite integral of the function f। तो किसी फंक्शन का indefinite integral को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो नोटेशन है ये यूज की जाती है। द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, इज द इंटेग्रल साइन, या इसको इंटेग्रल भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इस सिंबल को इंटेग्रल पढ़ते हैं। एफ इज द इंटेग्रेंट एंड डी एक्स एज वी विल डील विद इट इंडिकेट्स द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड।
तो इस एक्सप्रेशन में चंद चीज़ें हैं। एफ तो वो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको हम इंटेग्रेंट कहते हैं, और इस सिंबल को इंटेग्रल कहा जाता है। और जो डी एक्स है वो उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जिसके विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। जिस तरह डिफरेंशिएट हम किसी खास वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह इंटीग्रेट भी किसी खास वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट किया जाता है। सो टू वर्बल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेस आर integrate the function f with respect to the variable x or find the indefinite integral of with respect to x। तो इस प्रोसेस के लिए दो वर्बल एक्सप्रेशन है। एक तो यह है कि इंटीग्रेट द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, या तो हम ये कह सकते हैं इसको, और या फिर हम कहते हैं कि फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो किस्म के सवाल यूज़ किए जाते हैं इस सिंबल के लिए, या दो किस्म की दो तर्ज के सवाल पूछे जा सकते हैं। दो तरीक़ों से इसके सवाल को हम फ्रेज कर सकते हैं। सो गिवन दैट f is continuous function, the integral f of x dx is equal to capital F of x plus c is the answer if f prime of x is equal to f of x। जैसा कि हमने कहा कि एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो ओरिजिनल फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है। तो इसीलिए भी यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, ये हमारे पास वो ओरिजिनल फंक्शन है जिसका एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव है। सो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं, और सी जो है इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। सो द इंटेग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर कैपिटल एफ ऑफ एक्स the derivative of the capital F of x is your function f of x. So just like derivatives, there are rules of integration. So first rule of integration is that the integral of constant function, integral of k into dx is k into x plus c, where k is any constant. For example, अगर आपके पास function है f of minus 2 dx, तो ये होगा आपके पास minus 2 x plus c। तो अगर हम यहाँ पे अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन को यूज़ करें तो आपका जो f of x है वो है minus 2x, और इसका f prime of x है minus 2, which is your f of x। इस जो डेफिनेशन है वहाँ पे हम इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो द सेकेंड रूल इज़ द पावर रूल। सो इन पावर रूल द इंटेग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो पावर रूल को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब n -1 के बराबर ना हो। तो इस सूरत में इंटेग्रल ऑफ x टू द पावर n dx होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 के बराबर प्लस c, जो कि इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। यानी इसकी फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें x क्यूब dx, so this will be equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant c। क्योंकि n यहाँ पे -1 के बराबर नहीं है तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर हम दूसरे तनाजुर में देखें जो कि बेसिक डेफिनेशन है, तो अगर हम कहें कि इफ़ योर f of x is x to the power 4 by 4, तो इसका जो f प्राइम ऑफ x होगा वो होगा आपका 4x क्यूब बाई 4, विच इज़ x क्यूब, जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन f of x है इस क्वेश्चन में। So rule number 3 is that the integral of k f of x dx is equal to k times the integral of f of x dx, where k is any constant. For example, if you take k to be 1 by 2 and you take f of x to be x square dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वेयर dx के। अब अगर इसको हमने फर्दर सॉल्व करना हो तो इस पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1 by 2 x to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus some constant c, ये होगा हाफ ऑफ
x to the power 3 divided by 3 plus some constant c, और इसको हम लिख सकते हैं 1 by 6x cube plus some constant c। तो इसको अगर हम डेफिनेशन की इन टर्म्स देखें तो आपका f of x 1 by 6x cube है, और इसका जो f prime of x है वो है 3x square by 6। तो ये आपका है हाफ एक्स स्क्वेयर, जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन f of x है। So these rules are compatible with the basic definition, or they basically imply the basic definition. Rule number 4. In rule number 4, the integral of f of x dx and integral of g of x dx exist, then the integral of f of x plus minus g of x dx is equal to the integral of f of x dx plus minus integral of g of x dx. Rule number 4. If integral of f of x dx plus integral of g of x dx exist, then the integral of f of x plus minus g of x dx is equal to integral of f of x dx plus minus integral of g of x dx. यानी आपके पास दो फंक्शन हैं जिनका इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास सम ऑफ टू फंक्शंस है तो उसका इंटेग्रल को आप लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस सम ऑफ द प्लस द इंटेग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हो इंटेग्रल ऑफ 3x minus 6 dx, तो इसको आप लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ 3x dx माइनस इंटेग्रल ऑफ 6 dx, and then of course this can be written as 3x square by 2। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पावर रूल प्लस c1। अगर एक से ज़्यादा इंटेग्रल हो तो आप एक से ज़्यादा कांस्टेंट लिखेंगे, प्लस 6x प्लस c2, और इसको आप लिख सकते हैं एज 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x प्लस c1 माइनस c2 को आप c भी लिख सकते हैं, वेयर c इज c1 माइनस c2। So next is additional rules of integration, यानी जो हमारे गिवन रूल हैं उनके साथ कुछ फर्दर और रूल्स भी हैं। उसमें है रूल नंबर 5 जो कि एक्सेप्शन है पावर रूल की। अब पावर रूल में हमने कहा था कि n की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब हम उस केस को डिस्कस करते हैं जब हमारे पास n की वैल्यू -1 हो। So if you are given the integral of x to the power -1 dx, then it is log of x plus c। यानी this is basically power rule की एक्सेप्शन है। पावर रूल के इंटेग्रल x to the power n dx आपके पास होता था x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c for n not equal to -1. So but now if your n is -1, then this will be equal to log of x plus c, natural log. This is power rule. So rule number 6 is if you have the exponential function, then the integral of e to the power x dx is equal to e to the power x plus c. Because if you recall that the derivative of f prime of x is also e to the power x. So rule number 7 is that if you have the function f of x जिसकी आपके पास nth पावर है और आपके आगे उसका प्रोडक्ट है आपके पास f prime of x है dx, then the integral is equal to f of x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant c। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास जो एक्सेप्शन होगी ये भी पावर रूल की जनरलाइजेशन है, और यहाँ पे n is not equal to -1 होगा। So you can call it a generalized power rule. So generalized पावर रूल, या जो शुरू में हमने पावर रूल पढ़ा वो उसकी एक स्पेसिफिक काइंड है, क्योंकि उस केस में आपका f of x होता है x और f prime of x होता है 1,
तो आपके पास होता है इंटेग्रल x टू द पावर n इंटू 1 dx, और आप यहाँ पे यूज़ करते हैं f of x जो आपके पास x है टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. So this is a generalization of power rule. So for example you have the function x square minus 2x to the power 5 और आगे हो आपके पास x minus 1 dx, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं पावर रूल. बुनियादी तौर पे देखा जाए तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास नहीं है, लेकिन आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव बना सकते हैं. अगर आप f of x को लें x स्क्वायर माइनस 2x, और आपका f प्राइम ऑफ x आएगा 2x माइनस 2, यानी दिस इज 2 टाइम्स x minus 1. So it means that f prime of x divided by 2 जो है वो आपका जो है वो x minus 1 है. तो f prime of x divided by 2 को लाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. So आपका जो गिवन इंटीग्रल है उसको आप लिख सकते हैं एज f of x to the power 5 into 1 by 2 f prime of x. तो आप बेसिकली ये जो x माइनस 1 है उसकी जगह पे f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 को लिख सकते हैं dx. तो अब यहाँ पे आप जो है पावर रूल यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा f of x to the power 5 into f prime of x dx. So you will get half of x जो है वो आपका x स्क्वायर माइनस 2x है टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट c. या यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं कि f of x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट c. So this is your answer, which is 1 by 12 x square minus 2x to the power 6 plus some constant c. तो ये थी एप्लीकेशन जनरलाइज्ड पावर रूल की, जिसमें हमने जनरलाइज्ड पावर रूल को अप्लाई करते हुए एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया. So the next is rule number 8. So here if you have f prime of x into e to the power f of x dx, then this will be equal to e to the power f of x plus c. तो ये बेसिकली जो डेरिवेटिव है, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपके पास एक फंक्शन हो g of x जो कि e to the power f of x हो, तो उसका जो डेरिवेटिव e to the power g prime of x होगा वो होगा e to the power f of x into f prime of x. So this was one of your rules of differentiation. तो ये बेसिकली उसी रूल का एंटी डेरिवेटिव या इंटेग्रल फाइंड कर रहे हैं हम. ये डिफरेंशिएशन के उसी रूल से ही हमारे पास ये रूल आया है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द इंटेग्रल ऑफ 2x into e to the power x square dx. So here you have f of x क्या है आपका x स्क्वायर है जो कि की पावर है, और f प्राइम ऑफ x क्या है आपका 2x है. So integral of 2x e to the power x square dx can be written as e to the power x square plus some constant c. So these are the basic rules of integration. So the last one is the rule number 9, where you have the integral of f prime of x divided by f of x dx. यानी फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम बेसिकली इसको लिख सकते हैं log of f of x plus c के. तो ये भी बेसिकली जो जनरलाइज्ड पावर रूल है उसकी एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर आपके पास ये था जनरलाइज्ड पावर रूल कि f of x to the power n
इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे अगर आपका n-1 हो तो इसी को हम लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ n इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास होगा log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, if you have 6x divided by 3x square minus 10 dx, यहाँ आपके पास जो है वो f of x क्या है, 3x square minus 10 है, और f prime of x जो है वो इसका डेरिवेटिव 6x है। So hence this integral 6x divided by 3x square minus 10 dx is equal to the log of 3x square minus 10 plus some constant c. So these are the standard and basic rules of integration. There are some other techniques, but they are out of the scope of our course. So we will just be content to these basic rules of integration, और इसी को हम यूज़ करेंगे आगे। So now we start the topic of differential equations. So what is a differential equations? So a differential equation is an equation which involves derivatives and or differentials. तो differential equation एक ऐसी equation होती है जिसके अंदर derivative involve होता है। So if I say कि अभी हम जब से हमने ये टॉपिक शुरू किया है, वी आर ऑलरेडी सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, हमने शुरू में एग्जांपल ली थी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स 100 माइनस एक्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। So the following equation is an example where the independent variable is x. dy by dx is equal to 5x minus 2. तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है, जिसके फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। So differential equations are also classified by their order, which is the order of the highest order derivative appearing in the function. तो differential equation को order से classify करते हैं, और जो differential equation का order होता है वो highest जो order derivative होता है वो होता है। For example, if you take this differential equation dy by dx plus 3x minus 2, then it has order 1। और अगर आपके पास इक्वेशन हो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 10 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपके पास जो होगी इसका ऑर्डर 2 होगा। तो दिस इज द जो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इज बाय देयर डिग्री। तो ऑर्डर के अलावा एक और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम डिग्री कहते हैं। द डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होती है उसकी पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 10 प्लस वाई, तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि
जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 1 है, dy/dx है, और इसकी जो डिग्री है वो 2 है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव d² dx plus dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो इस सूरत में आपके पास जो होगा वो ऑर्डर 2 होगा, और चूंकि जिस हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म है वो उसकी डिग्री 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी ये 1 होगी. So that's how basically you find the degree and order of the ordinary differential equation. Solutions of ordinary differential equations. So, solution to differential equations can be classified into general solutions and particular solution. तो differential equation के जो solution है उनको हम दो categories में classify कर सकते हैं. एक जो होता है उसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन, और एक होता है जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन. अ जनरल सोल्यूशन इज वन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो जैसा हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो वो जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन. तो अगर जिस सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए उसको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन. A particular solution is one which is obtained from general solution. तो particular solution वो होता है जो कि किसी general solution से obtained किया जाता है. It means के particular solution तभी exist करेगा अगर general solution exist करेगा. So for particular solutions, specific values are assigned to the constants of integration based on initial conditions or boundary conditions. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है उसको हम कोई ख़ास वैल्यूज़ असाइन करते हैं. उन वैल्यूज़ को हम किसी न किसी जो इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन होती हैं उसको यूज़ करते हुए फाइंड करते हैं. सो कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 2x + 5. द जनरल सोल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन. तो अगर हम इसके इंटेग्रल लेंगे तो इंटेग्रल dy/dx इंटू dx हमारे पास होगा इंटेग्रल ऑफ 3x² - 2x + 5 dx. So this will gives us y is equal to 3x³ divided by 3 minus 2x² divided by 2 plus 5x plus some constant c. So this implies that y is equal to x³ minus x² plus 5x plus some constant c. तो ये जो है हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन है. So this is a general solution. So we can basically write it down like this. जो general solution हमने find किया है. So अगर हमारे पास initial condition given हो, so given the initial condition that f of 0 is 15, the particular solution is derived by substituting these values into the general solution and solving for c. तो अगर हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन अगर गिवन हो कि f of 0 15 है, तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं. अगर हम f of 0 को 15 फाइंड पुट कर लें जो हमारा जनरल सोल्यूशन है उसके अंदर, और c के लिए इसको सॉल्व कर लें. सो हेयर वी हैव फाउंड f of 0 which is 15 and this gives us the c is equal to 15. तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई है. So the particular solution to the differential equation is f of x is equal to x³ minus x² plus 5x plus 15. तो अगर आपके पास ये इनिशियल कंडीशन गिवन हो
f of 0 इज इक्वल टू 15, तो आपका जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो होगा f of x is equal to x cube minus x square plus 5x plus 15. So let's do another example. So given the differential equation f double prime of x is equal to d square y divided by dx square is equal to x minus 5, and the boundary conditions f prime of 2 is equal to 4 and f of 0 is equal to 10 determine the general solution and particular solution. तो अब हमारे पास जो है गिवन है ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब हमने इसका जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय फर्स्ट इंटीग्रेटिंग f डबल प्राइम ऑफ x. सॉल्यूशन. So given d square y divided by dx square is equal to x minus 5. So integrating or taking integral, we get the integral of d square y by dx square into dx is equal to integral of x minus 5 dx. तो ये आपके पास आ जाएगा dy by dx, और इसको आप लिख सकते हैं कि f prime of x, and this will be equal to x square by 2 minus 5x plus some constant c, and we call it equation number 1. So now we use the condition that f prime of 2 is equal to 4. So you get f prime of 2 is equal to 4. तो हमने f प्राइम में x की जगह पे 2 पुट करना है. So you get 2 square by 2 minus 5 into 2 plus c is equal to 4. So this gives us 4 minus 2 plus 10 is equal to c. So this implies that c is equal to 12. So f prime of x is given by x square by 2 minus 5x plus 12. So now you again integrate. Integrating, we get f of x is equal to y, or the integral of dy by dx into dx is equal to the integral of x square by 2 minus 5x plus 12 dx. तो ये आपके पास आ जाएगा y is equal to x cube divided by 6 minus 5x square divided by 2 plus 12 times x plus another constant, let's call it c naught, and equation number 2. So put f of 0 is equal to 10. So this gives you 0 cube by 6 minus 5 by 2 times 0 square plus 12 times 0 plus c naught. So this gives you c naught is equal to 10. Hence f of x is equal to x cube divided by 6 minus 5 by 2 x square plus 12x plus 10 is particular solution. एंड अगर आप यहाँ पे 12 की जगह पे c लिखें और 10 की जगह पे c नॉट लिखें, then this is a general solution.
12cx plus 5/2x square minus ये है x³/6 f of x. So this will be your general solution. तो ये आपने दोनों सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं जो गिवन कंडीशंस थी उसको यूज़ करते हुए. So now we will see an application of ordinary differential equations. So if we recall that in chapter number 7 and number 15 we have studied the exponential growth and decay functions. An exponential growth function have the general form given by v is equal to v0 into e to the power k times t, where v0 equals the value of the function when t is 0 and k is positive constant. तो चैप्टर नंबर 7 और 15 में हमने एक्सपोनेंशियल डीके और ग्रोथ फंक्शंस पढ़े थे. अगर हम रिकॉल करें तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन जो था उसकी जनरल एक्सप्रेशन थी हमारे पास v इज़ इक्वल टू v0 इंटू ई टू द पावर के टी. यहाँ पे v0 जो था हमारी वैल्यू की इनिशियल फंक्शन होती है, हमारी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू है एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 और k जो था हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है. It was also demonstrated that these functions are characterized by a constant percentage rate of growth, which is k, and dv by dt is equal to k times v0 into e to the power kt. और हमने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि ये जो फंक्शंस हैं इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं उसकी जो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ है जो कि हमने के सी डिनोट किया था उसकी मदद से. तो हमारे पास dv by dt जो था वो था k into v0 into e to the power kt, or v0 e to the power kt is v, so we can write dv by dt as k times v, because v is equal to v0 e to the power kt, which we just saw in the last slide. Example: species growth. The population of a rare species of fish is believed to be growing exponentially. तो हमारे पास एक फिश की ख़ास किस्म की नस्ल है जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. So when first identified and classified, the population was estimated at 50,000. तो जब इसको पहली दफ़ा पहचाना गया और क्लासिफाई किया गया तो ये पता चला कि इसकी जो तादाद है वो 50,000 है. 5 years later, the population was estimated to equal 75,000. 5 साल बाद जब उसकी तादाद को फिर से एस्टिमेट किया गया तो पता चला कि ये 75,000 है. So if p equals the population of this species at time t, where t is measured in years, the population growth occurs at a rate described by the differential equation dp by dt, which is equal to k times p, or k times p0 into e to the power kt. तो अगर हम p को उसकी पॉपुलेशन ले लें टाइम t के ऊपर, जहाँ पे टाइम t को हमने सालों में मेजर किया है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम जो नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि हमने पीछे देखा कि dv by dt था, तो यहाँ पे पॉपुलेशन p है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे dp by dt देंगे विच इज़ k टाइम p, और p जो है p0 e to the power kt है. सो टेकिंग इंटेग्रल, we see that the integral of dp by dt with respect to t is the integral of kp0 e to the power kt, and this will gives you the population. यहाँ पे आपका जो p0 है वो कांस्टेंट है और k e to the power kt है dt. यहाँ पे जो आपका f of t है ये है kt, और इसका हम अगर डेरिवेटिव लें तो f प्राइम ऑफ t जो है वो k होगा. सो बेसिकली हमारे पास e टू द पावर f ऑफ t और इंटू f प्राइम ऑफ t dt है, तो इसको हम लिख सकेंगे e टू द पावर f ऑफ t प्लस c. सो वी हैव p इंटू p0 इंटू e टू द पावर kt plus some constant c.
So to determine the specific value of P naught, we use the initial condition that P is 50,000 at t is equal to 0. तो अब हमने बेसिकली इस कांस्टेंट को भी फाइंड करना है. तो बेसिकली हम अगर इसको यूज़ करें तो वी कैन से दैट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 P नॉट इज़ 50,000, क्योंकि हमने मेंशन किया था कि शुरू में जो इसकी पॉपुलेशन है वो 50,000 है. सो वी हैव P naught is equal to 50,000. So your expression P is 50,000 into e to the power kt plus c. Now to find c, we know that at t is equal to 0 population is 50,000. So c at t is equal to 0, P is 50,000. This is 50,000 into e to the power 0 which is 1 plus c. तो ये दोनों साइड आपस में कैंसिल होके c जो है आपको 0 आएगा. So your function is given by p into 50,000 into e to the power kt. So now we will find the value of k. So after 5 years we know that at t is equal to 5, p is equal to 75,000. So 75,000 is equal to 50,000 into e to the power k into 5. So if we divide both sides by 50,000, we get e to the power 5k is equal to 1.5, and if you take log on both sides, then the log of e to the power 5k is equal to the log of 1.5. अब हमें पता है कि log of e जो होता है वो 1 के बराबर होता है. So we have 5k is equal to log of 1.5, और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि k is equal to 0.0811. So this is basically the percentage rate of increase of population. तो ये हमारे पास जो percentage rate of increase है वो है 8.11% और 8.11%. तो rate of जो increase है हमारे पास वो है 8.11%. So basically we can see that the particular solution describing the growth of the population is P is equal to 50,000 into e to the power 0.0811 into t. तो टाइम t के फंक्शन के तौर पे जो हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया है जो कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है, जिसमें आपका जो k है वो है 8.0811. सिमिलरली अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल डिके प्रोसेस हो तो आपके पास जो v होगा वो होगा v नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, और डी वी बाई डी टी आपके पास होगा माइनस के वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, और इसी तरह इट मीन्स के माइनस के इंटू वी, वेयर के इज़ द परसेंटेज रेट ऑफ डिके. लास्ट एग्जांपल में जैसे हमारे पास के था परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज. So this was an example and application of ordinary differential equations. So this is the today's lecture. So we started with antiderivatives, उसके बाद हमने rules of integration पढ़े, उसके बाद हमने additional rules of integration को study किया, and at the end we finished with the differential equations. So next time we will be studying the applications of integral calculus. In particular हमने शुरू करना है डेफिनेट इंटेग्रल से, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल्स को यूज़ करते हुए, और आखिर में एरिया बिटवीन द कर्व्स को भी हम डिस्कस करेंगे. उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने इंटेग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन और एंटी डेरिवेटिव्स को अच्छी तरह से समझा होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको तैयार करके आएंगे ताकि आपको जो फर्दर इसकी एप्लीकेशंस है उसकी भी आसानी से समझ आ जाएगा. हमें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.